Good morning, students. Welcome back to the chapters of social studies. Today, we are going to start with the exercise given in your workbook of your chapter, in which you'll be writing the answers of the chapter number 3, that is, Movement Towards a New World. In that, section A, go through the questions very properly and let us understand the details in a systematic way. In the first question, number A, section A, there are A and B sections in which you are going to write the correct answer in the answers column. The first question is, who is said to be the founder of the fascist party? You will get the answer, that is Benito Mussolini. Benito Mussolini. That is the second answer is absolutely correct one. Then President of Germany. Who was said to be the President of Germany? In that, you will be writing the answer. Okay, be very careful here. That is Hindenburg. Fifth one, Hindenburg was the President of Germany. Then on 1st September 1939, which event took place? That is the beginning of the Second World War. And the fourth, 11th of August 1945, which event took place? That is, it was the end of the Second World War. But still, go through the textbook and find out. It may be the President of Germany, might be given Adolf Hitler also. So please check it very properly. So it's my humble request to all the students, just read the book and find out if it is correct or not. Then, coming to the next point, let us find out according to the section A and section B. Be very careful here also. In that, WHO, okay, in that, write down the third one, that is World Health Organization. World Health Organization. IMF. Full form, write it properly, that is International Monetary Fund. International Monetary Fund. Then next is FAO, that is Food and Agriculture Organization. From the short forms you can understand what are their full forms. And last is ILO, that is International Labour Organization. Okay, and now move in the next question. Find out the true and false of the following sentences. The maxim of Mussolini was one party, one leader. Correct, that is true. Then second, the volunteers of the Nazi wore blue uniform. ओके, नीले रंग का यूनिफॉर्म होता था वॉलंटियर्स का, नाजी के ग्रुप का, एडोल्फ हिटलर का ग्रुप था. बिल्कुल सही है, इट इज ट्रू आंसर. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जर्मनी हैड साइंड द नॉन एग्रेशन ट्रीटी विथ फ्रांस. नो, नॉन एग्रेशन नहीं, एग्रेशन ट्रीटी सॉल्व हुई थी, सो इट इज फॉल्स आंसर. उल्टा हुआ था एक्चुअली. देन फोर्थ, द वर्ल्ड वॉर सेकंड वाज स्टार्टेड ऑन 11 सितंबर 1939. नो, it is again a false sentence. See the date properly in the textbook, it is given very clearly. Then the United Nations was established on 24th October 1945. See the clarity, it is true, 24th October 1945, before we got the independence. Allied nations became victorious in the Second World War.
एब्सोल्युटली ट्रू। अलाइड नेशंस जो है उनकी बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। Then seventh one, the General Assembly is the biggest organ of the United Nations. United Nations की सबसे बड़ी assembly organ माना जाता है। True. And in the last one, India is the permanent member of Security General. No, it is not the permanent member of Security General. It is false sentence. Okay. Now let us move on the next page. Page number 17. Please check the answers. If you are not getting it very clear, I'll just reduce the size so that you can get it very clear. Yes. Answer the following questions in a word or two. एक या दो शब्दों में जवाब लिखिए. What kind of government rose in some countries after the First World War? First World War के बाद किस प्रकार की गवर्नमेंट उभर के आई? That is dictatorship. 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 जिनको क्लियर नहीं दिख रहा है उनके लिए मैंने स्पेलिंग बताया. Dictatorship. Then second, which dictatorship was risen in Italy? इटाली में कौन सा हुआ था? Then write down the answer. Fascism. FASCISM. S नहीं लिखा है यहाँ पर, गलत है स्पेलिंग. Fascism. 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 The next, जर्मनी में भी कौन सी डिक्टेटरशिप उभर के आई थी? थर्ड वन, इन जर्मनी नाजिज्म. NAZISM. नाजिज्म. एडल्फ हिटलर और उसकी पूरी फौज को नाजिज्म में गिना जाता था. देन हु फाउंडेड द फैसिस्ट पार्टी इन इटाली? किसने ढूंढा था? हु फाउंडेड द फैसिस्ट पार्टी इन इटाली? राइट डाउन द करेक्ट स्पेलिंग. बेनिटो मसोलिनी. बेनिटो मसोलिनी. Then next one is the wooden fill and the X. The wooden till and the X were the symbol of which party? लकड़े का एक गुच्छा और एक कुलाड़ी का सिंबल कौन से पार्टी का था? लिखिए, फैसिस्ट पार्टी. इटाली के फैसिज्म पार्टी का वो सिंबल था. फैसिस्ट. FASCIST. फैसिस्ट पार्टी. Sixth one, from which Italian word is the fascism derived? तो लिखो आंसर. Fascismo. 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 और fascis. FASCES. FASCES. Then seventh, whose maxim was one party one leader? किसका था ये नारा किसका था? किसका मेन, जिसको टाइटल बोलते हैं, मैक्सिम बोलते हैं? बेनिटो मसोलिनी. BENITO. बेनिटो. MUSSOLINI. मसोलिनी. Then who established the dictatorship in Germany? ये ऊपर भी गया था, तो लिखो आंसर. एडोल्फ हिटलर. एडोल्फ हिटलर. एडोल्फ हिटलर ने ये किया था. Then what did the German people believe for Hitler? जर्मन के लोग हिटलर को क्या मानते थे? Führer. FUHRER means savior. SAVIOUR. savior. ब्रैकेट में लिखना है उसको. Then 10th one, the soldiers of Nazism used to put which symbol on their shoulders? Nazism पार्टी के लोग जो सोल्जर्स थे वो कौन सा सिंबल अपने शोल्डर्स पर लगाया करते थे? स्वस्तिका. स्वस्तिक इंडियन सिंबल था. SWASTIK और A लिखना है एंड में. स्वस्तिक बोलते वक्त, लेकिन लिखते वक्त स्वस्तिक का लिखना है.
Then 11th one, by which name is the event of killing innumerable Jews by the end of Second World War known? किस नाम से जाना जाता है? लाखों की संख्या में ज्यूज की हत्या कर दी गई थी जर्मन की, खास करके नाजिज्म पार्टी की तरफ से। तो ऐसे इवेंट को क्या कहा जाता है? लिखो, HOLOCAUST, होलोकास्ट, होलोकास्ट, CAUST, ब्रैकेट में जेनोसाइड भी बोलते हैं इसको, GENOCIDE, जिनोसाइड, हत्या की जाती है बेरहमी से। 12th one, which king of Japan encouraged the imperialist activities of the country? कौन से राजा थे जापान के? नाम लिखिए उनका, MEIJI, मेजी, MEIJI, सिंगल इंटेड कॉमा में, कॉमा कॉमा करके, एम्परर हिरोहितो, एम्परर HIRO HITO, HIRO HITO, Hirohito. Then 13th, in which treaty the seeds of the World War II were sown? ऐसी कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी जिसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत या उसके बीज बोए गए थे? लिखो, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ट्रीटी ऑफ VERSAILLES, वर्सलीज। 14th लिखिए, what did the German dictator Hitler announce on the Treaty of Versailles to reject it? उसको रिजेक्ट करने के लिए क्या अनाउंस किया था जर्मन के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने? उसने कहा था कि ये सिर्फ एक मामूली पेपर है, सो राइट डाउन अ पीस ऑफ पेपर, उसे एक मामूली कागज का टुकड़ा बोला था उसने, अ पीस ऑफ पेपर। 15th one, on which two cities of Japan the United States dropped the atom bomb to prevent Japanese strength? जापान की ताकत को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने कौन से दो शहर पर या दो शहरों पर जापान के बॉम्ब गिराया था, एटम बॉम्ब गिराया था? पूरे वर्ल्ड को पता है, हिरोशिमा एंड नागासाकी, हिरोशिमा एंड नागासाकी। Then 16th one, under whose leadership Chinese revolution was occurred? कौन थे वो लीडर चाइना के जिसमें खास करके जिसके लीडरशिप की वजह से रेवोल्यूशन हुआ था? माओ से टंग, MAO-TSE, अगेन डैश TUNG, माओ टिसे टंग। एक्चुअली उसे टिसे नहीं बोलते हैं, से बोलते हैं खाली, माओ से टंग ऐसा नाम है, लेकिन टी साइलेंट है उसमें। Then 17th, which world organization was established on 24th October 1945? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, UN ब्रैकेट में लिखना है। 18th, who made 4 important announcements regarding freedom while giving his message to the American Congress? कौन थे वो? लिखो, उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट रोosevelt, अमेरिकन प्रेसिडेंट ROASEVELT, रोosevelt। स्पेलिंग में करेक्शन होगा तो प्लीज, ये किसी और की वर्कबुक थी इसलिए हो सकता है करेक्शंस, तो वो प्लीज कर लेना, बुक में नाम दिए हुए हैं। 19th one, what is the office of the general secretary of the United Nations called? जो ऑफिस होता है जनरल सेक्रेटरी का यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उसे क्या कहा जाता है? ओके, तो उस ऑफिस को सेक्रेटरिएट कहा जाता है, SECRETARIAT। अगेन आई रिपीट, SECRETARIAT, secretariat। Okay, then 20th, in which city is the secretariat of the United Nations located? कहाँ पर है ये ऑफिस? लिखो आंसर, न्यूयॉर्क, अमेरिका के
न्यूयॉर्क में ये बना हुआ ऑफिस है. ओके, देन मूव इन द फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज द सिंबल ऑफ द फैसिस्ट पार्टी. फैसिस्ट पार्टी का सिंबल तीनों में से कौन सा है? रेड टेप या बंच ऑफ स्टिक्स एंड एक्स और साइन ऑफ स्वस्तिक. तो सेकंड आंसर करेक्ट है, बंच ऑफ स्टिक्स एंड एक्स. वर्कबुक में देखिए आपको मिल जाएगा, सेकंड ऑप्शन बी. देन सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. द सीड्स ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर वर सोन इन द डैश ट्रीटी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. कौन सी ट्रीटी थी वो तीनों में से? बोल्शेविक थी, फ्रैंकफर्ट थी, वर्सलीज थी. तो तीसरा आंसर लिखिए वर्सलीज. करेक्ट करते रहना है आंसर्स को. ओके, नाउ लेट अस मूव इन द नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 18 पर जाइए आप सब लोग. ओके, चलो थर्ड फिल इन द ब्लैंक है. पेज नंबर 18 बोला मैंने, 18 पेज नंबर है आपके सामने. ओके, लेट अस स्टार्ट. Dash had dropped atom bombs on the cities of Hiroshima and Nagasaki of Japan during the Second World War. पूरे वर्ल्ड को पता है, अमेरिका ने डाला था, ब्रिटेन ने डाला था, रशिया ने. तो आंसर लिखिए अमेरिका. अमेरिका ने 2 बॉम्ब गिराए थे. ओके, देन फोर्थ वन. The communist government in China was formed under the leadership of Dash. Mao Zedong, Mao Zedong, Mao Zedong. Mao Zedong लिखना पहला आंसर है. MAO dash TSE dash TUNG. बीच में हाइफन मार्क देना है. डैश मतलब हाइफन मार्क, हल्का सा डैश होता है ना, उसको बोलते हैं. ये पूरा नाम है उनका, माओ सेडुंग. Then fifth one, the headquarters of the United Nations is in dash city of the USA. अभी 2 मिनट पहले पढ़ा हमने. हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड नेशन के. ओके, कौन से शहर में? यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कौन से शहर में? न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन और सैन फ्रांसिस्को. इट इज न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में है. सिक्स्थ में देखिए, Dash is celebrated as the United Nations Day all over the world. United Nations का दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है. कौन सी तारीख को? 24th अक्टूबर. 24th अक्टूबर. Then 7th, Germans considered Hitler as a dash. क्या कंसिडर करते थे वो? हेरोर, फेरोर या मेंगोर? इट इज फ्यूरर. FUEROR. FUEROR. Then next है 8 में, the soldiers of Nazi party wore dash colored uniform. रेड, ब्लैक या ब्लू? ब्लू कलर का. करेक्ट, ब्लू कलर का यूनिफॉर्म पहनते थे. So write down the correct answer, blue color. चलो 9th, German communist dash described the Treaty of Versailles as a piece of paper. जर्मन के कौन से कम्युनिस्ट थे जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को एक कागज का टुकड़ा माना था? एडोल्फ हिटलर थे, मसोलिनी थे या लेनिन थे? पूरे वर्ल्ड को पता है एडोल्फ हिटलर ही थे वो. एडोल्फ हिटलर. 10th वन, लास्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स में. Hitler's dash policy was responsible for the outbreak of the Second World War. हिटलर की कौन सी पॉलिसी या कौन सा ऐसा उन्होंने दबाव लाया था, जो पॉलिसी में दबाव लाने की या हत्या करने की गुंजाइश की गई थी? नाजिज्म थी, कम्युनलिज्म था या इंपीरियलिज्म? इंपीरियलिज्म इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Choose the correct option from those given below each question and write the answers. Who founded the fascist party in Italy? इटाली में किसने ढूंढा था इन चारों में से? हिटलर ने, बिस्मार्क,
मसोलिनी या लेनिन? हिटलर मत लिखना, एक्चुअली उसने भी गलत लिखा था, वो एक्चुअली मसोलिनी है, क्योंकि इटाली की बात की गई है, जर्मनी की बात नहीं की है हमने। सेकंड, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द फैसिस्ट पार्टी? चारों में से कौन सा है? प्लाउ एंड सिकल, बंच ऑफ स्टिक्स एंड एक्स, देन सिकल एंड हैमर, या सिकल एंड स्टार? सिकल मतलब जो खास करके लकड़ी, खास लोहे की ऐसी कर्व शेप का होता है, जो घास काटने के लिए यूज करते हैं, उसको सिकल कहते हैं। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बंच ऑफ स्टिक एंड एक्स, लकड़ियों का गुच्छा और एक कुलाड़ी सिंबल था। थर्ड वन, व्हाट वाज द मैक्सिम ऑफ मसोलिनी? मसोलिनी का मैक्सिम कौन सा था इन चारों में से? वन पार्टी वन लीडर, टू पार्टीज टू लीडर्स, वन पार्टी 10 लीडर्स, या मेनी पार्टीज एंड मेनी लीडर्स? तो पहला आंसर करेक्ट है, वन पार्टी वन लीडर। ये ऐसे एमसीक्यू टाइप आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देन नेक्स्ट वन, ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हु स्टार्टेड नाजिज्म, दैट इज नाजी पार्टी इन जर्मनी? किसने शुरू की थी? लिखिए, हिटलर। इट इज नॉट मसोलिनी, भी नहीं है, लेनिन नहीं है, नन ऑफ देम, गलत है वो, इट इज हिटलर। एंड द लास्ट वन ऑन दैट पेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। इनमें से चार में से एक सही ऑप्शन जो दिया है उसको चुनिए। Fascism began in Germany? No. Mussolini was a German leader? बिल्कुल नहीं। The symbol of the Nazi party was, नाजी पार्टी का सिंबल नहीं था वो, a bundle of stick and axe? बिल्कुल नहीं, फैसिस्ट पार्टी का था इटाली के। Mussolini established fascism in Italy? Yes. Mussolini ने फैसिज्म पार्टी को निर्माण किया था। ओके, okay, next point is I just give you the details of the next page. चलो फिर पढ़ लिया, सिक्स्थ में जाइए। Which country dropped atom bombs on the Japanese cities? हिरोशिमा और नागासाकी पे किसने? फ्रांस ने, इंग्लैंड ने, जर्मनी ने, यूएसए ने? राइट डाउन द आंसर, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन 7, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिचुएटेड? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनीवा में है, वियना में है, न्यूयॉर्क में है, या पेरिस में है? इट इज न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के शहर में बना हुआ है हेडक्वार्टर्स, यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में बने हुए हैं। 8, which day is celebrated all over the world as the United Nations Day? कौन सी तारीख को? राइट डाउन करेक्ट आंसर, 24th अक्टूबर। 24th अक्टूबर, 15 जनवरी भी नहीं है, 20th दिसंबर नहीं है, 25th अक्टूबर भी नहीं है, इट इज 24th अक्टूबर। सो बी वेरी केयरफुल हियर। Where is the International Court of Justice situated? वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट कहते हैं, ये कहां पर बना हुआ है? पेरिस में, बर्लिन, हेग्यू, या फिर बुडापेस्ट में? इट इज सिचुएटेड एट हेग्यू, HAGUE। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट जो होता है उसे इंटरनेशनल कोर्ट कहते हैं ऑफ जस्टिस, हेग्यू में सिचुएटेड है। Which permanent member has made maximum use of the veto power? 5 परमानेंट मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन के, तो उन 5 परमानेंट मेंबर्स में से सबसे ज्यादा उपयोग इनमें से वेटो पावर का किसने किया है? चाइना, ब्रिटेन, रशिया जिसको पहले USSR कहा जाता था, फॉर्मरली USSR, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने खुद? रशिया इज द करेक्ट आंसर, फॉर्मरली
USSR इस नाम से उसे जाना जाता था। ओके, सो बी वेरी केयरफुल। रशिया वो देश है जिसने वेटो पावर का उपयोग सबसे ज्यादा किया था। वेटो पावर का उपयोग मतलब खास करके सपोर्ट करने के लिए या फिर अपने अलग अलग चीजों का निर्माण करने के लिए वेटो पावर का उपयोग किया गया था। देन हु टेक्स केयर ऑफ इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की सेहत का ख्याल रखती है? WHO, IMF, ILO या FAO? कॉमन सेंस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो राइट डाउन द करेक्ट आंसर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एक सिंबल दिख रहा है आपको, ये सिंबल इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन का है? नीचे दो पन्ने हैं और ऊपर यस एक शेप दिया गया है, इट इज FAO। FAO का फुल फॉर्म हमने मैच द फॉलोइंग में देखा था। ओके, सो जस्ट फाइंड इट आउट। और दूसरा एक सिंबल है, द सिंबल गिवन एडजेसेंट रिप्रेजेंट्स विच ऑर्गेनाइजेशन? ये किस चीज का सिंबल है? सो राइट डाउन, इट इज यूनिसेफ। ओके, यूनाइटेड नेशंस, ओके, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशनल फंड। ओके, ये उसका सिंबल है, खास करके बच्चों के लिए यूनिसेफ बहुत काम में आता है। देन all of you move in section B and we'll end the session today after this question. Then we'll jump in the next page in the next session. Explain the following terms. 2 मार्क के लिए पूछे जाएंगे आपको, 2 दिए हुए इसमें। One is the fascismo, क्या था? So write down the answer. The party which was established by Benito Mussolini, which was established by Benito Mussolini, is called fascismo. Is called fascismo. Full stop. The symbol of the party was a bunch of sticks and axe. The bunch of sticks and axe. First stop. Fascism word had been originated from the Italian word fascismo or fasces, FASCES, fasces. Full stop. Then write down the second definition, Cold War. The war of words and the war of ideologies that the both superpowers initiated, INITIATED, initiated in order to support or oppose, support करना या oppose each other's opinion is called as Cold War. अगले पेज पर जब जाएंगे तो उसका कुछ बाकी रहेगा तो वो कंप्लीट करेंगे। ओके,
All of you write down all these question answers in your workbook and please complete it and keep yourself ready for the exam. Thank you and have a nice day, and please take care, all of you.